Really thank and praise the Lord for this wonderful morning which God has given to us. और परमेश्वर ने जो आज सुंदर सुबह जो हमारे जीवनों में दी उसके लिए हम परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करते हैं। Let us have a quick word of prayer. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, you speak to us. स्वर्गीय पिता प्रभु तू हमसे बात कर। Let your spirit move among us and teach us. तेरा पवित्र आत्मा हमारे भीतर रहे और प्रभु हमें सिखाए। In the name of our dear Lord and Savior Jesus Christ, we pray. और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। Now I was just thinking, Lord, what I should share and what I should speak to my experience. और मैं सोच रहा था कि प्रभु आज मैं किस चीजों को बांटूं, किन अनुभवों से मैं आज प्रभु बांटूं। Actually, when I really meditated on this particular thought which God gave me, and then I saw the memory verse and I was surprised to look at it. और जो विचार जो मैं कर रहा था कुछ बांटने का और फिर मेमोरी वर्स को भी जब मैंने देखा तो मैं उसको बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ देखकर। You know, it is something which, you know, God really has got that grace and that mercy which is there upon us. ये सच में वही है, परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया जो हम पर बनी हुई है। This morning, actually, what God gave me was to talk on or to share upon is God's loving kindness. और आज जो वचन मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ जो परमेश्वर ने मेरे मन में रखा है वो परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की जो दया है उसके ऊपर। This is something which I can think of it every day. ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में निरंतर प्रतिदिन मैं सोच सकता हूँ। This is something which I cannot live without it. और ऐसी बात जिसके बिना मैं नहीं जी सकता। And you know, in this loving kindness, there are two natures. और ये परमेश्वर की करुणा और दया के अंदर दो स्वभाव पाए जाते हैं। One is love and another thing is kindness. और एक प्रेम है और दूसरी दया। And when these two mingles together, it becomes more strong when it falls on us. और ये दोनों जब एक साथ में मिलकर हम पर आती है तो ये दोनों बहुत ही मजबूती के साथ हम पर उतरती है। I think this particular verse or this particular word should encourage all of us. और खास करके ये शब्द जो है, ये वचन जो है वो खासकर हम सभी को प्रोत्साहित करना चाहिए। And we can all speak of our experience and tell what God has done in our life. और हम सब अपने अनुभवों से बांट सकते हैं, कह सकते हैं कि जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में किया है। Yes, and you know where it is like I need to remember what God has done in my life. और ये मुझे स्मरण करना है, मुझे याद करना है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या-क्या किया है। I really, remember how God has led me throughout the years till today, which I really thank God for that, and which He has blessed me and led me through. और मैं याद करता हूँ परमेश्वर ने पिछले सालों में कितने अधिक सालों से बढ़कर यहाँ तक परमेश्वर किस तरह से लगवाई करके लेकर आया है, उसके लिए मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ। Even to the point, when I did not have anything, when I did not have, when I could not see anything in future, or I could not see anything ahead, in that point also God did not leave me nor forsake me. जीवन के ऐसे समय में जहाँ पर कुछ भी नहीं था और ऐसा समय कि जहाँ कल क्या है, भविष्य में क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं पता, लेकिन परमेश्वर वहां भी मुझे वहां तक यहाँ तक लेकर आया। In Psalms 36 verse 7, और भजन संहिता 36:7 के अंदर there it talks about how excellent is thy loving kindness. और वहां लिखा है परमेश्वर तेरी करुणा कैसी अनमोल है। And therein it says, therefore the children of man put their trust under the shadow of thy wing. और इसलिए लिखा है कि इस्राएली जो परमेश्वर के संतान तो जो थे वो तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं भरोसा करते हुए। In King James version it says, how excellent is thy loving kindness. और किंग जेम्स अनुवाद में लिखा है कि तेरी करुणा दया कितनी उत्तम या बेहतर है। And in NASB it is said like, how precious is your loving kindness. और NASB अनुवाद में कहता है कि कितनी बहुमूल्य तेरी करुणा है। In this both translation, when I just checked it, and it has got two different meaning to understand. और ये जो दोनों अनुवाद को जब मैंने तुलना की तो एक बहुत ही एक अलग-अलग उसका मतलब मेरे सामने आया। When it says how excellent, means it is above all outstanding. और यहाँ पे लिखा है कि कितनी बेहतर और बेहतरीन वो है, मतलब सारी जो चीजें उससे बढ़कर वो ऊपर है। Something above everything.
और कुछ ऐसा जो सबसे ऊपर है। And when it talks about precious, it is valuable. It is, I cannot, value that. It's that. दूसरे अनुवाद में जैसे अनमोल या बहुमूल्य लिखा है, जिसका उसका मूल्य मैं नहीं कर सकता, बहुत ही वो अति मूल्यवान है। Yes, that's why I need to speak, how valuable and excellent it is for me. Speak और about ये it. सच में मुझे इसके बारे में कहना है कि कितना अनमोल और कितना बेहतरीन ये करुणा मेरे जीवन के लिए है। Yes, when I experience that in my life, when I really, get closer to that, I find that rest under the shadow of God's wing. और जब मैं उसको और अधिक जानता हूँ, अपने जीवन में अनुभव करता हूँ, तब वो परमेश्वर के सामर्थ्य पंखों के तले में शरण पाता हूँ। Yes, that is where, we read in Psalms once in Psalm 63. और यही हम भजन संहिता 63 के अंदर पढ़ते हैं, Where David has got his desperate desire, and where he is telling about it. और यहाँ पर दाऊद की तीव्र इच्छा या मनोकामना को यहाँ पर वो कह रहा है। And there actually, about this loving kindness, one thing which I could learn about. और ये परमेश्वर की करुणा दया के बारे में एक चीज जो मैं सीख पाया वो ये है, It is more written in the Psalms. और ये सबसे अधिक भजन संहिता में इसको अधिक लिखा गया है। And it is very much better described by none other than King David. और किसी और व्यक्ति से बढ़कर दाऊद राजा ने इसको बहुत ही बेहतरीन रीति से इसका वर्णन किया है। Because I believe that every step he's been experiencing that in his life. क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि उसके जीवन के हर एक कदम के ऊपर इस बात को वो अपने जीवन में अनुभव करता रहा। So also we can also experience the same things, and we can also share that and praise God for that. और यही हमारे जीवन में भी हम अनुभव कर सकते हैं और बांट सकते हैं अपने जीवन से। In Psalms 63, from 1 to 7. और भजन संहिता 63 उसके 1 से 7 वचन में, there he has got a tremendous desire and thirst, and his flesh is yearning for the Lord. और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा एक प्यास या एक अभिलाषा, एक तीव्र इच्छा जो है उसके अंदर दाऊद के अंदर पाई जाती है। And he says that it is so dry, in that very and dry land he is searching and is searching for the Lord. और वहाँ कहता है कि जैसे सूखी और निर्जल भूमि के ऊपर प्रभु मेरा मन प्यासा है, तुझे ढूंढता है। And he is just looking at that and is having that desire to seek the Lord with all his heart and mind. और यहाँ पर परमेश्वर को ढूंढता और अपने पूरे मन से परमेश्वर को ढूंढने की या खोजने की उसके अंदर एक अभिलाषा है। Why that desire is there inside his heart, and why that thirst is there, why that yearning is there in his heart. क्यों उसके मन में एक प्यास, एक इच्छा, एक तीव्र अभिलाषा उसके मन में है। There in the further verse it says because, it says because. और उसके आगे के वचन में लिखा है क्योंकि, because your loving kindness is better than life. क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि जीवन से बेहतर तेरी करुणा है। Over here David is really telling that it is more valuable than his life. It's more valuable to me than my life. और वो यहाँ पर ये कह रहा है कि परमेश्वर की करुणा मेरे जीवन से बेहतर अधिक मूल्यवान है। Where he is always praising and is telling that as long as I live, I'll praise and bless your name, O Lord. और यहाँ पर कहता है कि जब तक मैं जीवित रहूंगा सदा सर्वदा प्रभु मैं तेरे नाम की स्तुति करता रहूंगा। And where he says that really he wants to open his heart, he wants to lift up his hands and praise the Lord and give all that glory, and he wants to tell how much he loves the Lord with his true heart. और यहाँ पर वो अपने हाथों को, अपने हृदय को उठाकर पूरे हृदय से परमेश्वर को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर से वो कितना अधिक प्रेम करता है। He says, even when I'm on the bed, when I'm sleeping also, I remember that, I meditate about it day and night and I watch about it. और जब कभी मैं बिछौनों में पड़ा हूँ तब कभी मैं परमेश्वर के बारे में सोचता हूँ, उसके ऊपर ध्यान और मनन करता हूँ। And there also he remembers how God's shadow was over him and how God was protecting him. He remembers that and he sings about that in joy. और वो परमेश्वर की शरण या उसके साए को याद करता है और उसको स्मरण करता है। In the First Chronicles chapter 16 verse 34, पहला इतिहास 16:34,
You know, there we read, oh, give thanks to the Lord, for He is good. और वहां लिखा यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, And there it says His loving kindness is everlasting. और उसकी करुणा सदा की है. Even the memory verse, what we saw this morning time, there also we see, you know, Lord, your loving kindness is everlasting. और जैसे आज सुबह हमने मेमोरी वर्स में भी देखा कि प्रभु तेरी करुणा सदा सर्वदा बनी रहने वाली है. What I understand to this is that there is no end. और इससे मैं क्या समझता हूं कि उसका कोई अंत नहीं है, There is no limitations. और उसकी कोई सीमा नहीं है. You know, when I fall also, when I really look unto the Lord, you know, it covers me and it gives me that grace to stand in front of the Lord and, you know, to glorify and to magnify the Lord. जब कभी मैं गिरता हूं उसके अनुग्रह के सामने, जब मैं आता हूं तब मैं वो सामर्थ वो पाता हूं ताकि मैं उसको महिमा और उसके नाम को ऊंचा उठा सकूं. How God is leading me throughout the years till today. और कैसे परमेश्वर इन सारे सालों में मेरी अगुवाई अब तक कर रहा है. You know, there is one song which I remember about this particular verse. और एक गीत की पंक्ति में इस प्रकार स्मरण करता हूं. You know, there it says, thy loving kindness is better than life. और जीवन से बेहतर तेरी करुणा है. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. और प्रभु मेरे होठों से प्रभु मैं तेरी स्तुति करूंगा और प्रभु मैं तुझे धन्य कहूंगा. This is something which I need, which has to come out from my inner life, it has to flow out from my inner life. ये ऐसी बात है जो मेरे भीतरी जीवन के गहराई से ये बहनी चाहिए. Yes, when I praise with my lips, you know, my inside heart, I'm ready, you know, I'm longing with that thirst as David had. और जैसे मैं अपने होठों से स्तुति करता हूँ, मेरे भीतरी जीवन के अंदर मेरे हृदय के साथ जैसे दाऊद जैसे एक इच्छा करता था, वैसे मैं परमेश्वर की स्तुति करने की इच्छा रखता हूँ. And really praising God, you know, and not just showing or not, you know, telling in my outward appearances, but really meaning to that what it means. और सारे अर्थ के साथ बाहरी दिखावे के लिए नहीं, लेकिन उस अर्थ के साथ परमेश्वर की स्तुति करते हुए जिसका वो अर्थ मैं करता हूँ. Then it says, I will lift up my hands unto thy name. और वो कहता है मैं अपने हाथों को तेरी ओर उठाऊंगा. This is something when I say, when I lift up my hands, is like where I really honor God, when I really, you know, in my true spirit, I acknowledge, you know, that glory of my God. और जब मैं अपने हाथों को उठाऊं तो कहता हूं कि प्रभु सच की उसकी महिमा उसको कहता हूं, उसको मैं मानता हूं. You know, another verse, you know, we can look into is Psalms 26 verse 1 to 3. और भजन संहिता 26 उसके 1 से 3 वचनों को हम देख सकते हैं. This is something, you know, how I am living or how I want to live every day in my life. और यहाँ पर वो चीज है कि कैसे मैं प्रतिदिन अपने जीवन को जीना चाहता हूँ. Here also to this I had to understand, I referred to two translations. और यहाँ पर भी दो अनुवाद को मैंने देखा. Over there in one translation, that is the King James version, it says, "Judge me, O Lord." और किंग जेम्स अनुवाद के अंदर लिखा है कि प्रभु तू मुझे मेरा न्याय कर. Where he says, you know, that I am been walking in your integrity and I have trusted you. और प्रभु तू मुझे जांच और प्रभु कैसे मैं उस खराई के अंदर चला हूँ. And I see your loving kindness before my eyes. और प्रभु मेरी आंखों के सामने तेरी करुणा को मैंने देखा है. And there it says, you know, that the word what I said, judge me, O Lord, the word judge which I see. और यहाँ पर एक जो शब्द लिखा है कि प्रभु तू मेरा न्याय कर, इस शब्द को मैं देखता हूँ. In NASB it says, you know, vindicate me, O Lord. NASB में लिखा है कि प्रभु तू मुझको छुड़ा. Vindicate means the meaning what it is like, you know, clear me, O Lord, free me, O Lord. और विंडिकेट वो जो शब्द लिखा है इसका मतलब कि प्रभु तू मुझे पूरी तरह से आजाद कर, मुझको पूरी तरह से छुड़ा. You know, when I have that freeness and when I have, you know, that clear conscience, you know, it will really make me to help in that, help me to really understand more and to walk in that truth. और जब मेरे पास इस प्रकार का मन होता है, एक शुद्ध विवेक होता है, तो उस सत्य के अंदर मैं चल पाता हूँ. Where I really see how I am living my day-to-day life and what I'm wanting every day. प्रतिदिन मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ, प्रतिदिन मैं किस चीज की लालसा, किस चीज को चाहता हूँ. Yes, that is what I want to live every day, you know, and living in that clarity and with clear conscience. और इसी प्रकार प्रतिदिन मेरा जो है, प्रतिदिन एक शुद्ध विवेक के अंदर जीवन को बिताते हुए.
Yes, and then another thing what I thought about is that is in Psalms 25. और भजन संहिता 25 में और एक चीज को हम पाते हैं। This is something where I really take to my heart, and and to understand, if it was not like this, what would have happened to me. और इस बात को समझते हो कि प्रभु यदि ऐसा न होता तो मेरे जीवन में क्या हो जाता। In verse 25, verse 5 to 7. और 25 अध्याय के 5 से 7 वचन में हम देखते हैं। Here he tells about, it is like it is been that God's loving kindness is been from old. और यहाँ पे लिखा है कि प्रभु वो परमेश्वर जो है वो पहले से ही मुझ पर करुणा रखे हुए है। And there it is telling, God, you don't remember the sins of my youth and my transgressions, or my transgressions. वहां पर वो कहता है कि मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को प्रभु तू स्मरण न कर। This is again something, if God had to remember my sins, where will I stand? और यदि परमेश्वर मेरे पापों को स्मरण करेगा तो मैं उसके सामने कहाँ खड़ा रह पाऊंगा। Really, I would have not been able to stand in front of him. I would have not had that grace, even to go to him. It is because of that, and because he has not remembered that sins and that transgressions which I did against him, which he has not remembered, for that reason I stand today. और यदि परमेश्वर मेरे पापों को स्मरण करता तो शायद मैं उसके सामने बिल्कुल भी खड़ा नहीं रह पाता, मेरे पास वो अनुग्रह नहीं होता, पर उसने मेरे पापों को स्मरण नहीं रखा, इस कारण मैं उसके सामने खड़ा रह पाता हूँ। Really, I thank God for that, where God has given me that place, and I really, I really humble, and I thank God for giving me that heart to come to Him in this manner. और परमेश्वर ने नम्र हृदय जो मुझे दिया कि इस प्रकार मैं परमेश्वर के सामने इस प्रकार धन्यवाद के साथ खड़ा रह सकूं। And another thing about it is like, I need to learn about it, and I need to teach about it, and talk about it, in other words. और दूसरे शब्दों में इसको मुझे सीखना है और मुझे और भी कहना है, उसको औरों को सिखाना है। Yes, in Psalms 48 verse 9, और भजन संहिता 48 अध्याय उसके 9 वचन में, where it says, we have thought of thy loving kindness in the midst of your temple, or of thy temple. और वो कहता है परमेश्वर तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया या विचार किया है। This is something what I have learned, and what I've been learning, and how I am talking about it, how I am teaching about it. और यही बात है कि जो मैं सीख रहा हूँ अपने जीवन के अंदर अनुभव करते और उसको मैं बोलता हूँ या सिखाता हूँ। Yes, the more I learn, it's more I talk about it. और जितना अधिक मैं उसको सीखते जाता हूँ उतना अधिक मैं उसके बारे में बोलते जाता हूँ। And the more I experience about it, it really blesses my life, and so also it encourages others also when I talk about it. और जितना अधिक मैं इसको अनुभव करते जाता हूँ उतना अधिक मैं इससे आशीष पाता जाता हूँ और उसको मैं अनुभव करते औरों के लिए भी वो आशीष बनता है और औरों से बात कर पाता हूँ। I remember the times, when it was like I was not able to see anything. I was just seeing that there was no way. It was utterly dark, and I could not move a step ahead. और जैसे मैं स्मरण करता हूँ कि ऐसा एक समय था जहाँ पूरी तरह से आगे अंधकार दिख रहा था, भविष्य में कुछ भी नहीं दिख पा रहा था, एक कदम भी मैं आगे नहीं ले पा रहा था, ऐसी अवस्था थी। I lost everything, nothing. It was a total zero, which I still, when I think about it, I really, I say, Lord, how great is your loving kindness upon my life. और मैंने सब कुछ पूरी तरह से खो दिया था, शून्य की अवस्था में आ गया था, तब मैंने परमेश्वर की उस करुणा जो मुझ पर उसको स्मरण किया। Today also when I live, I don't live for today. I just live because I live because God's loving kindness is there upon me. और आज भी अगर मैं जी रहा हूं तो ये इसीलिए क्योंकि परमेश्वर की करुणा जो है मेरे जीवन के ऊपर बनी हुई है। Because I do not know about tomorrow. क्योंकि मैं कल के बारे में नहीं जानता। Yes, it's again God's grace upon my life, which God has given me today. और वो परमेश्वर का अनुग्रह जो आज परमेश्वर ने मेरे जीवन के ऊपर दिया है। Yes, and another thing about is to acknowledge, acknowledging my sins and coming to the Lord and telling, and where God is very clear, and He understands and He forgives it. और दूसरी चीज है कि अपने पापों को परमेश्वर के सामने पूरी तरह से मान लेना और परमेश्वर उसको जानता है और उससे माफ करता है।
because when I go to him and when I acknowledge him, and definitely, and God clears that, as he helped David, and when David really confessed it with a real true heart. और जैसे दाऊद ने पूरे हृदय के साथ अपने सच्चे दिल के साथ उन पापों को माफ किया, वैसे ही परमेश्वर मेरे पापों को जब मैं मानता हूँ उसी को साफ या दूर करता है। In Psalms 51 we can see about that. और भजन संहिता 51 में इसे हम पाते हैं। Yes, because there he says, because of your loving kindness, O Lord, you have blotted out my transgression. और वहां कहता है कि प्रभु तेरी करुणा के कारण प्रभु तूने मेरे अधर्म को पूरी तरह से दूर कर दिया है, मिटा डाला है। Yes, that's the reason I could acknowledge my sin, and I could come to you, and you have cleansed me और इसी कारण from मैं all my sins. मेरे पापों को तेरे सामने मान सका और तेरे समीप आ पाया। And there's another thing which I understand is not to forget his benefits till today, what he has done upon my life. और मैं एक चीज को स्मरण करता हूँ कि हर एक परमेश्वर के उपकार जो अब तक मेरे जीवन पर हुए, उसके किसी भी फायदे को मुझे नहीं भूलना है। This is something which I should never forget about it. और उसे कभी भी मुझे अपने जीवन में नहीं भूलना है। That's why we read in Psalms 103, the way David explains about it. और 103 भजन संहिता में हम जानते हैं, जैसे दाऊद यहाँ पर कहता है, He says, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name." और वो कहते हैं, मेरे मन तो यहोवा को धन्य कि जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। And then he says, "And forget none of his benefits." और वो आगे कहता है कि उसके किसी भी उपकार को न भूलना। That is because he crowns, he says, crowns with loving kindness and compassion. और वो है जो हमें पूरी उसकी करुणा और दया से, जो है उसके तरस से हमको पूरी तरह से घेरे रखता है, भरता है। Yes, there it says, where it is not just for one time, it says, your years with good things. In NASB it is written. और यहाँ पे लिखा है कि NSB के अंदर लिखा है कि वो उस करुणा से, वो दया से वो भरा हुआ है। Who satisfies throughout the years with good things, not for one day. और एक दिन के लिए नहीं, लेकिन जीवन के हर एक दिनों के अंदर वो मुझे उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। Yes, this is something like, where I really need to thank God for all that benefit he has, he has done in my life, the help what he has given and he has done in my life. और जो भी उपकार परमेश्वर ने किया, जो भी मदद परमेश्वर ने मेरे जीवन में अब तक की, उन सारी बातों को मुझे स्मरण करना है, नहीं भूलना है। And I really need to thank the Lord, praise the Lord, worship the Lord with all my heart. और इस कारण मुझे अपने पूरे हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद देना, उसकी स्तुति, उसकी आराधना और उसको धन्य कहना है। That is what David does in Psalms 138, और 138 भजन संहिता में दाऊद यही करता है। He says in NASB it is written like this, I will give you thanks with all my heart, I will sing praises to you. और NSB अनुवाद में कहता है कि मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और अपने पूरे हृदय से तेरे लिए भजन को गाऊंगा। I will bow down towards your holy temple. और तेरे पवित्र मंदिर की ओर मैं दंडवत करूंगा। Why he is doing that? He says because of your loving kindness and your truth. और वो कहता है क्योंकि तेरी करुणा और सच्चाई के कारण मैं ऐसा करूंगा, मैं धन्यवाद दूंगा। This is something which I need to do, every time, and which I need to thank God, not forgetting, and always praising, thanking, and worshiping God. Giving that, having that gratitude of heart towards the Lord. और परमेश्वर के प्रति धन्यवादी हृदय के साथ हमेशा परमेश्वर की को स्तुति, धन्यवाद निरंतर करते रहना है, जैसा यहाँ पर है। There is a promise, which God gives, in Isaiah chapter 49. और यशायाह उसका 49 अध्याय के अंदर एक प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर ने हमको दी है। And that promise what God gives is that He will not forget us. और ये प्रतिज्ञा परमेश्वर की है कि वो हमको भूलेगा नहीं। And there we read like this, can a woman forget a nursing child? और वहां पे लिखा है क्या जन्माने वाली माता अपने दूध पिए उस बच्चे को भूल सकती है? This is something like, mother will never forget a child, but even it says, can a mother forget? और यहाँ पे लिखा है कि कोई माता क्या अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए, 15 वचन में। And then, further it says, even if there is a chance of mother forgetting, mother may forget her child. और वहां आगे लिखा है कि हाँ, हो सकता है, ऐसी संभावना हो सकती है, एक माता अपने बच्चे को भूल सकती है। There could be some chances where it is recorded like this. We see around the world. Sometimes mother may forget the child, may not have concern for the child. हो सकता है क्योंकि हमारे आसपास संसार में ऐसी खबरों को हम देखते, कई बार माता
अपने बच्चों के बारे में कोई चिंता, उनको वो छोड़ देते हैं, उनको त्याग देते हैं। But there again it says, even if that happens, लेकिन वो कहता है भले ऐसा होता भी हो तब भी, it says, but I will not forget you. This is something which I take to my heart. ये मैं अपने हृदय में लेता हूँ, जिससे लिखा है कि परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। And with that great compassion, he says that I have inscribed you in my palms, he says over there. और बड़ी तरस के साथ वो कहता है कि देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। This is the love of God, this is the loving kindness of a God who so much cares for me and for us. और ये परमेश्वर की करुणा, उसकी दया जो है, प्रेम जो हमारे प्रति जो कितना अधिक हमारी चिंता करता है। And about this, when I see in the New Testament the display of this loving kindness, और इस करुणा को मैं नए नियम के अंदर जो प्रदर्शित किया गया उसे जब मैं देखता हूँ, there actually it is beautifully it is written about his the way he has shown his loving kindness. और वहां पे एक सुंदर रीति से परमेश्वर की करुणा जो वहां लिखी गई है उसके बारे में मैं देखता हूँ। There we see in John 3:16 and 17. और यूहन्ना 3:16 और 17 में इसको हम बहुत ही देखते हैं। The way he has displayed that to everyone and to the world. और किस प्रकार से हर एक व्यक्ति और संसार के लोगों के लिए कैसे उसने यहाँ पे वो करुणा को दर्शाया। There he has given he says, oh, he has loved us, he has loved each and every one of us. और यहाँ पे वो ये कहता है कि उसने हम सबों से प्रेम किया है। He has loved us. It is not only me, it is the world, it is everyone. We all are into that. और ये हम नहीं लेकिन सारे संसार भर जो हम संसार में सबसे उसने प्रेम किया है। And he has given his only valuable, which I said, a thing which is above, which he had, that he gave to us. और सबसे मूल्यवान जो चीज जो उसके लिए बहुत ही मूल्यवान थी वो चीज उसने हमारे लिए दे दिया। And that he has given to me, that I should not perish, I should have eternal life, I should build in that relationship with God. और उसने वो मेरे लिए दे दिया ताकि मैं बच जाऊं या मैं उस परमेश्वर के साथ उस संबंध के अंदर आ सकूं। This is something which I need to carry every day. Yes, Lord, that is a thing, a price which you have paid for me to understand the value. और ये प्रतिदिन मुझे याद करना है कि प्रभु सच में तूने वो कीमत जो मेरे लिए चुकाई है। Really, this morning time, let us really understand the beauty of God's loving kindness. और सच में आज सुबह परमेश्वर की जो करुणा और सच्चाई जो है उसकी हम सुंदरता को आइए हम समझे। Let us continue remembering, not forgetting it. और निरंतर आइए उसे हम स्मरण करते रहे, याद करें, उसे हम भूले नहीं। We have received it through our Lord Jesus Christ. और हमने अपने प्रभु यीशु मसीह से उसको प्राप्त किया है। Amen. आमीन। I was blessed by today's memory verse especially. और आज के मेमोरी वर्स से खासकर मुझे बहुत आशीष मिली। It says, the Lord will work out his plans for my life. और यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर उसकी योजनाओं को मेरे जीवन के संबंध में पूरा करेगा। It reminds me how some dads has plans for his son. और ये एक बात स्मरण दिलाता है कि कैसे एक पिता जो होते हैं अपने बच्चों के लिए कैसे योजना बनाते हैं। And he invests in his son's life and do all the planning, take the responsibility to ensure that the purposes are fulfilled. और एक पिता जो होता है अपने बच्चों के लिए सारी योजनाओं को तैयारी को करता है ताकि उसके संबंध में जो योजना है वो सब कुछ अच्छे से पूरी हो सके। That is how the hands of the Lord is silently work in each of our lives. और उसी रीति से हमारे स्वर्गीय पिता का हाथ गुप्त रीति से, शांत रीति से हमारे जीवन में कार्य करता है। To perfect his plans, his destiny in our lives. और परमेश्वर की जो योजना है, जो मंजिल उसने जो हमारे लिए रखी है, उसको वो हमारे जीवन में पूरा करता है। We may be in a certain crossroads in our life. और कई बार हो सकता है हम अपने जीवन के उस चौराहे में या चार रास्ते के अंदर हम खड़े हो। We may not have much controls in what is happening around us. और उस चौराहे के ऊपर शायद बहुत सारी चीजें जो हमारे साथ हो रही है उसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। But God as a loving father, लेकिन परमेश्वर एक प्रेमी पिता के रूप में
He will work out His plans for our life. लेकिन वो हमारे जीवन के लिए उस योजना को वो पूरा करेगा. So that is something should bring much security and comfort to our lives. और ये बात हमारे जीवन में एक सुरक्षा को और एक बहुत एक प्रोत्साहन को हमारे जीवन में लेकर आनी चाहिए. This is a verse which many times during my life of uncertainty in the past, it has really comforted me. और भूतकाल में बहुत अनिश्चितता के समय में ये वचन ने मुझे बहुत ही प्रोत्साहित किया है. If we can turn to Matthew chapter 20. और मत्ती उसका 20 अध्याय 21 onwards. मत्ती 20 और उसका 21 वचन से आगे. Jesus is telling a parable regarding the kingdom of heaven. और परमेश्वर यहाँ पे यीशु मसीह जो है परमेश्वर के राज्य के बारे में एक दृष्टांत देता है. The kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire laborers for his vineyard. Is it Matthew, uncle? No. Matthew 20. 1 onwards. 1 onwards. 1 onwards. स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए. And he agreed with the laborers for a denarius a day salary and sent him to the vineyard. और 2 वचन में लिखा है कि उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा. And after some time he went about the 3rd hour also and saw some others standing there in the market. और उसके बाद वो तीसरे पहर पर जाकर अन्य लोगों को जो बाजार में बेकार खड़े उन्हें देखता है. And he told them, you also go into vineyard and whatever is right I will give to you. और उनसे वो कहता है तुम भी दाख की बारी में आ जाओ और जो कुछ ठीक है वो मैं तुम्हें दूंगा. And they also went out to his vineyard to work. और वे भी आए और उसकी दाख की बारी में काम करने लगे. And he went out again the 6th hour and 9th hour and did the same thing. और फिर दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया. Because whenever we went out, some people were still remaining who were not hired by anybody. और कभी भी वो स्वामी जब बाहर गया तो कुछ लोगों को वहां पर खड़ा पाया जो किसी की भी द्वारा वहां पर उनको काम नहीं मिला था. And in verse 6, about the 11th hour, और वहां पे लिखा है कि 11वीं घड़ी मतलब एक घंटा दिन रहे उसके पहले towards the evening, और शाम के समय पर the day is going to be closing. और यहाँ पे दिन जो है समाप्त होने पर था. At that time he went out, he still found some people at the marketplace remaining to be hired. और वहां पर स्वामी ने जाकर देखा तो बाजार में और भी लोग जो खड़े हैं जिनको किसी ने भी काम पे नहीं रखा, ऐसे लोग वहां पर खड़े हुए थे. And he asked them, why have you been standing here idle all this day long? और स्वामी उनसे पूछता है तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रह रहे हो? And they replied in verse 7, because no one hired us. और वो कहते हैं कि इसलिए किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया, इस कारण. And he said, you also go into my vineyard and work. और फिर वो स्वामी उनसे कहता है कि तुम भी मेरी दाख की बारी में आओ और काम करो. Sometime, in near a house, there is a place, marketplace, where every morning the laborers gather together, waiting for someone to hire them. और हमारे घर के पास में ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे मार्केट है, जहाँ पे मजदूर लोग खड़े रहते हैं वहाँ पे काम के लिए, और जहाँ पे लोग उनको आकर मजदूरी के लिए लेकर जाते हैं. Masons, carpenters, painters, like people who work in the field, etc. और जो बढ़ई होते, मिस्त्री होते हैं या अलग अलग काम करने वाले लोग वहाँ पर होते हैं. And it so happened, some people remain to be hired. और यहाँ पर ऐसा हुआ कि कुछ लोगों को मजदूरी नहीं मिली और वो वहीं पर ऐसे ही खड़े थे बाजार में. And when we look at their face, we can see their helplessness. और जब हम उनको चेहरे को देखते हैं तो उनकी असहाय उस अवस्था को हम देख सकते हैं. They want desperately work for someone to earn their wages. और उनकी बहुत ही इच्छा है कि वो जाकर कोई उनको काम पे रखे और वो पैसे कमाएं. It so happened that even after waiting several hours, no one has hired them.
और यहाँ पर ऐसा हुआ कि कुछ बहुत सारे घंटों के बाद उस राह देखने के बाद भी किसी ने उनको ऊपर मजदूरी पर लेकर नहीं गया। In my spiritual life, very often when I see them, I see myself in that place. और जब मैं आत्मिक रीति से मैं अपने जीवन को देख पाता हूँ, मैं अपने आप को उस जगह पर रखकर देख पाता हूँ। A time when I had to wait for long to be hired. मेरे जीवन में एक ऐसा समय जहाँ पर एक लंबे समय तक मुझे राह देखनी पड़ी कि कोई मुझे आकर कोई उसको किराए पर ले जाता है, मुझे मजदूरी देता। It's like no one accepted me. और किसी ने भी मुझे अपनाया नहीं। Sometimes I think all the good ones, smart ones, educated ones are all hired first. और मैंने कहीं ना कहीं देखा कि बहुत ही जो चतुर लोग थे, जो बहुत ही पढ़े लिखे जो थे, जो बहुत ही माहिर थे, उनको मजदूरी मिल गई, उनको लेकर गए। Sometimes when I remember my own salvation, when I was a young student, I remember with a great thankfulness in my heart. और जब मैं एक जवान विद्यार्थी था, तब मैं एक बड़े धन्यवाद के साथ मेरे उद्धार के बारे में मैं सोचता हूँ। Because I knew many of my friends who were much better than me, much well-mannered, better character. क्योंकि मैं सोचता हूँ मेरे कई सारे जो मित्र जो थे वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही स्वभाव में या बहुत ही अच्छी उस रखते थे। Many people who are much better and good than me. और बहुत सारे लोग जो थे वो मुझसे बहुत ही बेहतरीन और मुझसे अच्छे थे। But God was so merciful to save me, to choose me. और परमेश्वर इतना दयावंत होकर जिसने मुझे चुना। So we can see God's loving kindness here. और यहाँ पर हम परमेश्वर की जो करुणा है उसको देख सकते हैं। Even though there was a period of waiting, और यहाँ तक कि वहाँ पर एक राह देखने का समय था, desperate waiting, और एक बहुत ही तीव्र इच्छा के साथ जो एक बाट देखना जो होता है, it could appear that no one accepted me. और एक ऐसा समय कि जहाँ जो दिखाता है कि किसी ने भी मुझे ग्रहण किया नहीं, किसी ने अपनाया नहीं, Or I was rejected by others. और मैं देख पाता हूँ कि बहुत सारे लोगों के द्वारा मुझे तिरस्कार किया गया। But at the right time, the Lord appeared in my life. लेकिन मैं देख पाता हूँ एक सही समय पर परमेश्वर मेरे जीवन में आया, Working in my life, मेरे जीवन में कार्य करते हुए, taking responsibility about my life, मेरे जीवन की जिम्मेदारी को उठाते हुए, and sending me to His vineyard. और अपनी खुद की स्वयं की बारी में मुझे भेजते हुए। And it is worth that waiting for God's work in our life. और ये परमेश्वर के कार्य को जो हमारे जीवन में जो था, वो जो हो रहा था, उसको उसकी बाट जो ना बहुत ही अच्छा था वो। So that period of waiting is not at all a waste. और वो परमेश्वर की राह देखने का समय बिल्कुल भी व्यर्थ समय नहीं था। And He will definitely fulfill His plans for my life. और वो सच में निश्चय ही उसकी योजनाओं को मेरे जीवन के संबंध में पूरा करेगा। We see something far more beautiful. और उससे भी बेहतरीन या सुंदर चीज को हम देखते हैं। Towards the end of the day, the landowner asked his supervisor to give the salaries. और यहाँ पर जो गृह स्वामी जो है वहां पर आके जो इनको जो तनख्वाह देनी होती है, आमदनी दिन का, वो वहां पर उनको देने को कहता है। So he started paying the salary from the last one onwards. और जो मजदूर जो अंत में आए थे उनको वो मजदूरी देने से शुरुआत करते हैं। The last one received one denarius. और जो अंत में आए थे, सबसे दिन के अंत में आए थे, उनको भी 1 दिनार मजदूरी मिली। This much more than he expected. और यहाँ तक कि जितना उसने अपेक्षा किया था उससे कहीं गुना बढ़कर। Because he just worked just for 1 hour. क्योंकि उसने तो अंत में आके सिर्फ 1 घंटे के लिए ही काम किया था। Still he received the whole day's salary. लेकिन फिर भी उसको पूरे दिन की मजदूरी मिली। So seeing this, those who were hired right in the morning, they expected that they would receive much more. और ये देखकर जो सुबह से जो लोग मजदूरी के लिए जो आए थे, उन्होंने ये अपेक्षा की कि उनको तो अंत में आए हुए लोगों से अधिक ही मजदूरी मिलेगी। But they also received what was promised to them by the Lord.
लेकिन उन लोगों को भी जो उसके गुरु स्वामी ने उनको जो वायदा किया था उसी के अनुसार उनको भी मजदूरी मिली। So beautiful thing is even those people who were called late to the vineyard, और यहाँ पर सुंदर बात हम देखते हैं कि जो अंत में मजदूरों को अंत भाग में भी बुलाया गया था, their reward was far more than they deserved or expected. और उनका जो प्रतिफल यहाँ पर जो जिनकी वो अपेक्षा कर रहे थे, जिनकी वो योग्य भी नहीं थे, उससे कहीं अधिक बढ़कर उनको वो प्रतिफल या मजदूरी मिली। It is to such an extent it made others envious. और इतनी अधिक उनको जो वहां पर जो उनको इस स्तर पर उनको वो प्रतिफल मिला ताकि और लोग देखकर उसके ऊपर जलन रखने लगे। So waiting for the Lord is not a waste. और परमेश्वर की राह देखना कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। And we you know that story is concluding. Those who were called in the beginning, they grumbled at the landowner. और हम देखते कि आगे जो पहले बुलाए गए थे वो गुरु स्वामी के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे इस कारण। They have some logical questions to ask. और उनके पास एक तर्क था, विचार था, उस विचार से वो पूछ रहे थे सवाल को, Which is very genuine. ये बहुत ही ये सरल है। ये Yeah, questioning the landlord. We worked the whole day. We are bearing the entire heat of the day. Why you made us equal with the people who worked just for 1 hour in the evening? और वो बहुत ही सरल रीति से यहाँ पर कह रहे थे कि हमने सुबह से वो दिन भर का भार उठाया, इतनी धूप में, कड़ी धूप में, क्यों तूने हमारी मजदूरी को इन अंत में आए हुए 1 घंटे काम करने वाले मजदूरों के साथ बराबर किया। See the Lord's answer to them. और स्वामी उनको उत्तर देता है In verse 13. 13 वचन में, Friend, I am doing you no wrong. और हे मेरे मित्र, मैं तुझसे कोई अन्याय नहीं करता। Did you not agree with me for 1 denarius in the morning? और क्या तूने सुबह ही मुझसे 1 दिनार के लिए तूने सहमत नहीं हुआ था? And I gave it to you. और मैंने उसे तुझे दिया है। Why are you envious at others? और तू दूसरों के प्रति क्यों जलन रखता है? Take what is yours and go away. और जो कुछ तेरा बनता है उसे कर जा। I wish to do to this last man the same as I do to you. और मेरी भी यही इच्छा है कि जितना मैंने तेरे साथ किया है, जितना तुझे दिया, उतना ही इस पिछले व्यक्ति को जो मैंने उसको प्रतिज्ञा की उसके अनुसार मैं उसे दूं। I am not taking from you and giving to him. और मैं तेरा कुछ लेकर इस अंत में आए हुए व्यक्ति को नहीं दे रहा हूँ। I am giving to him from mine. और मैं मेरे पास जो है उसी से उसको दे रहा हूँ। And he is saying in verse 15, is it not lawful for me to do what I wish to do with my own? और 15 वचन में कहता है, क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? Why your eye is envious because I am generous? और क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? So it's a mercy if we are able to see the generosity of the Lord in our own life. और ये परमेश्वर की दया है कि जब क्या हम परमेश्वर की उस उदारता को, उस भलाई को देख पाते हैं, The loving kindness of the Lord in our life. और परमेश्वर की वो करुणा जो हमारे जीवन पर बनी है, Receiving something which we had not deserved or expected. और वो चीजें जो हम कभी अपेक्षा नहीं कर पाते या हम योग्य नहीं, उस चीज को प्राप्त करते हैं। And when everyone else reject us, we can hope the Lord doesn't reject us. और जब हर किसी ने हमें तिरस्कार किया, हम ये आशा करते कि परमेश्वर हमको कभी तुच्छ नहीं जानता या नहीं हमें And छोड़ता। even if we had to wait for long, it is worth that waiting. और यहाँ तक हमें एक लंबे समय तक हमें राह देखनी पड़ती है, लेकिन उस राह को देखना हमेशा बहुत ही योग्य The होता है। Lord's ways are beyond our comprehension. और परमेश्वर के जो मार्ग है हमारी समझ से कहीं परे है, It will cause us to fill our hearts with gratitude. और हमारे मनों को, हृदय को बहुत ही अधिक धन्यवाद से भर देता है। Amen. We read from Psalms 42 what David says in verse 1. और हमने भजन उसके 42 से पढ़ा कि दाऊद क्या कहता है पहले वचन में। It says, as the deer pants for the water brooks, so my soul pants for you, O Lord, O God. और वहाँ लिखा है, जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है,
वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। So this was David's cry in the morning, that he longs for God in the morning. और यही दाऊद की एक दिल की एक इच्छा थी कि वो हर सुबह परमेश्वर के लिए हाँफता था। So that desire we also need to cultivate every morning. I need to long and have a heart which comes near God. और ये एक अच्छी इच्छा है जो हर दिन हमें भी, हमारे अंदर भी होनी चाहिए कि हर सुबह हमारा भी ऐसा मन परमेश्वर के लिए व्याकुल हो। Instead of waiting for something else in the morning, I have to wait for God. और हर सुबह किसी और चीज की राह देखने से अच्छा हम परमेश्वर की राह देखते हैं। So I should not wait for my mobile phone in the morning. और हर सुबह मैं अपने मोबाइल के लिए ना राह देखूं, I should not wait for the cup of tea when it will be ready, और इसकी मैं राह न देखूं कि कब एक चाय का प्याला मेरे लिए तैयार हो, or when I will be able to have the breakfast, या कब मैं अपना सुबह उठकर नाश्ता कर सकूं, or any other thing which is in the world. Before that, my longing is as the deer pants for the water. I long for you, O Lord. और दूसरी कोई भी सांसारिक चीज नहीं, पर उससे पहले जैसे हरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, प्रभु मैं भी तेरे लिए हाँफता हूँ। And as we heard today, it is because David understood the loving kindness of God. और जैसे हमने सुना, ये इस कारण था क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर के करुणा को समझ लिया था। So I also need to think about what God has done for me. और इसलिए मुझे भी इस बारे में सोचना है कि प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है। So our heart should always be filled with the gratitude towards God for all the things He has done for us. और मेरा हृदय जो है हर समय प्रभु के लिए जो कुछ उसने हमारे लिए किया है उस वजह से कृतज्ञता से भरा हुआ होना चाहिए। And like we heard, it should not be a heart which says that I deserve these things. और ये एक ऐसा मन ना हो कि हम कहें कि ये मेरी योग्यता थी, Like those servants who agreed for 1 denarii with the master and then went for working. और जैसे वो जो सेवक थे जिन्होंने सुबह ही इस बात को तय कर लिया था कि वो 1 दिनारी के लिए काम करेंगे। But I don't work or I don't do anything because I will receive some reward from God. पर मैं कोई भी इस वजह से काम नहीं करता कि प्रभु से मुझे कोई प्रतिफल मिलेगा, इस वजह से मैं काम नहीं करता। But I have seen the love of God which He has shown on me, the wretched sinner. पर मैं देख सकता हूँ कि प्रभु ने कैसे मुझ पर दया की है। एक बहुत ही मैं पापी व्यक्ति था और मुझ पर उसने दया की है। And if God has to give me according to what I deserve to go to hell. अगर मेरी योग्यता के हिसाब से प्रभु मुझे कुछ देता तो मैं तो जरूर नरक जाता। So that is why anything God gives me, it is not according to my capability or my what I deserve. It is much more than what I deserve. और इसलिए जो कुछ प्रभु मुझे देता है वो मेरी योग्यता के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। मेरी योग्यता से कई ज्यादा बढ़कर प्रभु हर समय मुझे देता है। We read a parable in Luke 7 from verse 40. और हम लूक 7 उसके 40 वचन से आगे एक दृष्टांत को पढ़ते हैं। I have many times read and meditated on this parable. और मैंने कई बार इस दृष्टांत को पढ़कर उस पर मनन किया है। It is about a woman who weeps at the feet of Jesus. और एक स्त्री के बारे में है जो यीशु मसीह के पैरों के सामने जाकर वो विलाप करती है। And Jesus says these words in verse 47. For this reason I say to you, her sins, which are many, have been forgiven, for she loved much. But he who has been forgiven little loves little. और 47 वचन में यीशु मसीह कहता है कि इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वो थोड़ा प्रेम करता है। So many times we can see in our heart, we don't give everything to Jesus. और कई बार हम देखते हैं कि हमारे मनों से हम सब कुछ यीशु को नहीं देते। We keep some reservations, we keep some areas in our heart to say that this belongs to me, I will not give that to Jesus. और हमारे मन में ऐसे कुछ क्षेत्र है जो हमने खुद के लिए बचा कर रखे हैं और हम कहते हैं इन क्षेत्रों को मैं यीशु को नहीं दे सकता। That is because I have not seen how much God has forgiven me. इसका एक ही कारण है कि मैंने ये नहीं देखा कि कितना परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया है। We see some places in the Word of God that we have to thank God. और हम परमेश्वर के वचन में कुछ जगहों में इस बात को देखते हैं कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। I just want to read few of these verses. First,
और ऐसे कुछ वचनों को मैं पढ़ना चाहता हूँ। First, it says in Ephesians 5 verse 20, always giving thanks for all things in the name of the Lord Jesus Christ. और पहला है इफिसियों का 5वां अध्याय उसका 20 वचन, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। That means at all times and for all things. इसका मतलब है सदा, मतलब हर समय और सब बातों के लिए। And it says in Colossians chapter 3 verse 17, whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks through him to God the Father. और कुलुसियों उसके 3 अध्याय के 17 वचन में ये लिखा है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। That means I have to thank God in all things. इसका मतलब हर काम में मुझे परमेश्वर का धन्यवाद करना है। We also read in 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. और हम पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसके 18 वचन में भी पढ़ते हैं, In everything give thanks. हर बात में धन्यवाद करो। So I have to give thanks at all times, for all things, in everything. और इसलिए मुझे हर समय सब बातों के लिए और हर चीज में धन्यवाद करनी है। So it is not just when everything is going well with me, I give thanks to God. और इसका ये मतलब नहीं कि जब मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा जा रहा है, सब कुछ सरल जा रहा है, तब मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। I give thanks even when things are not going well. जब मेरे जीवन में चीजें अच्छी नहीं भी है, तभी मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। And I give thanks for that thing also which is not going well. और इसका ये भी मतलब है कि जो चीज मेरे जीवन में अच्छी नहीं हो रही, उस चीज के लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। So this was not possible in the old covenant. और पुरानी जो वाचा थी उसके अधीन ये संभव नहीं था, Because they didn't have a verse like Romans 8:28. क्योंकि उनके पास रोमियो 8:28 ऐसा वचन था ही नहीं। But we have this verse and we have this wonderful thing which God has revealed to us. पर हमारे पास ये वचन है और ये बहुत ही एक अद्भुत चीज है जो परमेश्वर ने हम पर प्रकाशित की है। We can just read that verse although we know it, or Romans 8:28. यद्यपि हम इस वचन को जानते हैं, फिर भी हम इस वचन को पढ़ेंगे, रोमियो 8 उसका 28। And we know that that God causes all things to work together for good to those who love God and to those who are called according to his purpose. हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। We can thank God for all things because God causes all things to work together for our good. और हम सारी चीजों में परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं क्योंकि परमेश्वर हर चीजों को, उन सारी बातों को मिलकर हमारे जीवन में भलाई को उत्पन्न करता है। And I'll just read the following verses also because these have been a lot of confidence in my life. और इसके आगे के भी कुछ वचनों को मैं पढ़ना चाहूंगा क्योंकि इन वचनों के वजह से मुझे काफी हिम्मत प्राप्त हुई है। For those whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son, that he would be the firstborn among many brethren. 29 वचन, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। So this is an amazing promise that God foreknew me and he has predestined me to be conformed to the image of his son. और ये बहुत ही अद्भुत वचन है जो कहता है परमेश्वर मुझे पहले से ही जानता था और उसने मुझे पहले से ही ठहराया था ताकि मैं उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाऊं। So if that is my goal, that I want to become like more and more like the image of his son, then I can rejoice in all the things that God allows in my life. और इसलिए अगर ये मेरा उद्देश्य है कि मैं और परमेश्वर के बेटे की तरह होना चाहता हूँ, फिर मैं अपने जीवन के हर परिस्थिति में आनंद कर सकता हूँ। I will rather go through a suffering and become more like Christ than go through a comfortable life and be myself. और इस कारण के अगर मैं परमेश्वर के पुत्र के जैसा हो सकूं, तो इसके लिए मैं किसी भी दुख से भी होकर गुजरने के लिए तैयार हूँ। इसके अलावा इसके विपरीत कि मैं अपने ही स्वभाव में बने रहूं और बहुत ही एक अच्छा जीवन गुजारूं। So from my heart, I can say that
if God allows this suffering in my life to make me like Christ, that is much better than having a comfortable life in this earth. और इसलिए मैं सचमुच इस बात को कह सकता हूं कि प्रभु अगर मेरे जीवन में ऐसी कोई दुख या पीड़ा में से मुझे गुजरने की अनुमति देता है जिसके द्वारा मैं और यीशु मसीह की तरह बनूं, तो मुझे वो मंजूर है बजाय इसके कि मैं बहुत ही एक अच्छा जीवन बिताऊं और अपना स्वभाव कभी भी बदलूं नहीं. That's why it says in James 1:2, consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials, knowing that the testing of your faith produces endurance, and let endurance have its perfect result, so that you may be perfect and complete and lacking in nothing. और इसलिए याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय के 2 से लेकर 4 में याकूब कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे. And in 1 Peter 5 verses 8 to 10 it says, be of sober spirit, be on the alert. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking whom to devour. But resist him, firm in your faith, knowing that the same experiences of suffering are being accomplished by your brethren who are in the world. And in verse 10 it says, after you have suffered for a little while, the God of all grace, who has called you to his eternal glory in Christ, will himself perfect, confirm, strengthen and establish you. To him be dominion forever and ever. Amen. और पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और 8 से 10 वचन में वो ऐसा लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए. विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं. और फिर वो 10वें वचन में कहता है, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा. अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, उसी को साम्राज्य युगान युग रहे. आमीन. There are so many such wonderful promises which God has given us so that we can rejoice always. और परमेश्वर ने ऐसे कितने अद्भुत हमें अभिवचन दिए हैं, प्रतिज्ञाएं दी है, जिसके वजह से हम हर समय आनंद कर सकते हैं. And it says in 1 Peter 5:6 also, therefore humble yourself under the mighty hand of God. और इसलिए पहला पत्रस उसके 5वें अध्याय के 6ठे वचन में यह भी लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो या नम्र रहो. And he will exalt you at the correct time. और वो उचित समय पर तुम्हें बढ़ाए. So I just want to encourage everyone and myself that God has such a wonderful plan for our life. और इसलिए मैं सबको और अपने आप को प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर की हमारे जीवन के लिए एक अद्भुत और उत्कृष्ट योजना है. And it is not to make a lot of money and a lot of a comfortable life. और उसकी ये योजना नहीं है कि हम बहुत पैसे कमाएं और बहुत एक अच्छा और सुख विलास का जीवन जिए. But my Father has planned that I will become exactly like his son Jesus Christ. पर मेरे पिता ने मेरे लिए ये योजना की है कि मैं बिल्कुल उसके बेटे यीशु मसीह की तरह बनूं. And I want to submit myself to that plan. और मैं भी अपने आप को इसी योजना के प्रति समर्पित करना चाहता हूं. Amen. आमीन. Praise and thank God for today morning's word. Can you be a little louder? I praise and thank God for today's morning word. आज सुबह के वचन के लिए मैं सचमुच परमेश्वर को स्तुति देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ. It was really an encouraging message, and the memory verse that we heard, that God will accomplish what concerns me. और ये सचमुच एक बहुत ही प्रोत्साहन देने वाला वचन था. और हमारा जो आज का याद करने का भी वचन था, वो भी कि वो मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, उसकी योजना को वो प्रभु पूरा करेगा. Not what concerns my children, what concerns my neighbor, but what concerns me. Sorry? Not what concerns my children, what concerns my neighbors or somebody else, but what concerns me, God will accomplish. और ये नहीं कि जो मेरे बच्चों के लिए है या जो मेरे पड़ोसियों के लिए है, पर जो प्रभु की मेरे लिए योजना है उसको वो पूरा करेगा. And today something that was God was speaking to my own heart, I would like to share. और एक चीज जो परमेश्वर आज मुझसे बात कर रहा था, मैं उसको बांटना चाहूंगी. That God has called me to be an ambassador for Him. कि प्रभु ने मुझे इसलिए बुलाया है कि मैं उसके लिए एक राजदूत बनकर जीऊं. Yeah, that is in 2 Corinthians chapter 5.
और ये दूसरा कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय में है verse 20. और उसका 20 वचन। Therefore, we are ambassadors for Christ. इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। And that word ambassador was speaking to my own heart that God has called me for a purpose on this earth. और ये जो शब्द है राजदूत, इससे परमेश्वर मुझे कह रहा था कि ये मेरे जीवन का उद्देश्य है इस पृथ्वी पर। God has just not picked me up from this world or from so many people just to be a namesake Christian. प्रभु ने मुझे इतने लोगों में से इसलिए नहीं चुना ताकि मैं ऐसे ही नाम के वास्ते एक मसीह बनकर रहूं। That I have been born again, I have taken water baptism and I'm saved now and I can just live as I want. और मेरा नया जन्म हुआ है, मैंने पानी से बपतिस्मा लिया है, मैंने उद्धार प्राप्त किया है और अब मैं जैसे चाहूं वैसे जीऊं। God has called me not for that but to be an ambassador for Him. प्रभु ने मुझे इस कारण से नहीं बुलाया बल्कि इसलिए बुलाया है ताकि मैं एक राजदूत बनकर जीऊं। Ambassador means a representative. राजदूत का मतलब है परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करना। One who represents something like a country sends their representative to another country, an ambassador to another country. जैसे एक देश जो है वो दूसरे देश में अपने एक प्रतिनिधित्व करने के लिए एक राजदूत को भेजता है। Like from America, ambassador comes to India. जैसे अमेरिका देश से एक राजदूत भारत में आकर रहता है। He comes to represent America in India. और वो अमेरिका का इस भारत देश में प्रतिनिधित्व करने के लिए आता है। So he has to come with all dignity. He has to show himself. He's coming from a very big country. और जब वो आता है उसका बर्ताव भी इस प्रकार से होता है कि वो एक बड़े देश से आया है। And he has to keep to that dignity. और इस एक बहुत ही उच्च स्तर का चाल चलन उसे रखना होता है। Because he represents his country. क्योंकि वो उसके देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। So God has called me to represent the kingdom of heaven, to represent Jesus Christ. और परमेश्वर ने मुझे इसलिए बुलाया है ताकि मैं स्वर्ग के राज्य का प्रतिनिधित्व करूं, यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व करूं। Yeah, and some of the verses that encourage me is from Second Corinthians chapter 6. और कुछ वचन है जिन्होंने मेरा प्रोत्साहन किया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय। Yeah, from verse 3 we'll read. और तीसरे वचन से आगे हम पढ़ेंगे। Giving no cause for offense in anything, so that the ministry will not be discredited. हम किसी बात But in everything commending ourselves as servants of God. And I don't want to read all that, brother. You can read it in Hindi. Yes. From 3 to verse 6. From verse 3 to till 10. Yes. और दूसरा कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय 3 से लेकर 10 तक। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं, बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथों में है, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरमाने वाले जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, अनजानों के सदृश है तो भी प्रसिद्ध है, मरते हुओं के समान है और देखो जीवित है, मार खाने वालों के सदृश है परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान है परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। So this is the calling that God has called us for, to represent Jesus Christ in our lives. और ये एक बुलाहट है जिससे परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम यीशु मसीह के प्रतिनिधि बने। In verse 4 it says, but in everything commending ourselves as servants of Christ, as ambassadors of God. और चौथे वचन में लिखा है, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। Like here it refers to many things, like we can go to hardships, to afflictions and distresses. We are not going to beatings and imprisonment, but today what the world is going through, a lot of fear and
lot of financial situations, how we can represent Christ. और यहाँ लिखा है कि क्लेशों में भी, दरिद्रता में भी, संकटों में भी, और यद्यपि आज तो हम हमारे विश्वास के लिए हम बंदी गृह में तो नहीं जाते, पर आज इस संसार में जैसे काफी आर्थिक पीड़ाओं में हम जा रहे हैं, इसमें कैसे हम यीशु मसीह को के प्रतिनिधि बनकर जी सकते हैं? Yes, am I like the people of the world, or am I like Jesus today in these situations? क्या आज मैं बिल्कुल संसार के लोगों की तरह जी रहा हूँ? क्या आज मैं इन सारी परिस्थितियों में यीशु मसीह की तरह जी रहा हूँ? Yeah, in verse 6 it says, in purity, in knowledge, in patience, in kindness, in Holy Spirit, in genuine love. और छठे वचन में लिखा है, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से और सच्चे प्रेम से, In the word of truth, in the power of God. सत्य के वचन से और परमेश्वर की सामर्थ से। Yes, so I really need to live in such a state that with a lot of patience, with a lot of kindness, in genuine love, and in the power of God. और सचमुच मुझे ऐसा जीवन व्यतीत करने की जरूरत है, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से और परमेश्वर के सामर्थ से। I don't need to be a grumbler in today's where everybody is grumbling, everybody is crying about their financial status, but I can be with full of love and full of trust in God and knowing God's faithfulness in my life. और एक ऐसे संसार में जब सब लोग अपने आर्थिक क्लेशों की वजह से कुड़कुड़ा रहे हैं, मुझे भी उनके समान कुड़कुड़ाने वाला बनने की कोई जरूरत नहीं। मैं परमेश्वर की जो मेरे जीवन में काम है उस पर विश्वास कर सकती हूँ। Yeah, that God is faithful and He is able to keep me and provide for me in every situation. कि परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो पूरी क्षमता रखता है कि वो मुझे संभाले रखे, हर परिस्थिति में मेरे लिए मेरी जरूरतों को वो पूरा करे। I need to know that whom I am serving. I'm serving an Almighty God, and the most powerful kingdom this earth doesn't have it here. The kingdom of God. और मुझे ये समझने की जरूरत है कि मैं किसकी हूँ, किसकी सेवा कर रही हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की मैं हूँ और मैं स्वर्ग के राज्य की हूँ, जो इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा सर्वशक्तिशाली राज्य है। And I want to thank Jesus for the hope He has given us. और मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिस आशा को उसने हमें दिया है। Jesus is our hope. यीशु खुद हमारी आशा है। And one verse that encouraged me is from Hebrews chapter 1. और एक वचन जिसने मुझे प्रोत्साहित किया था वो था इब्रानियों के पत्री उसके पहले अध्याय से। Talking about Jesus in chapter 1 verse 1, 2 and 3. और इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय और पहले 3 वचन। Yeah, brother, you can read. Yes. पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ के वचन से संभालता है। वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा है। And this verse 3, the beginning really blessed me, and He is the radiance of the glory and the exact representation of God's nature. और तीसरे वचन का जो पहला भाग है, मैं इससे बहुत आशीषित हुई। वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, जिसका अर्थ है वो बिल्कुल परमेश्वर का एक प्रतिनिधित्व करता है। When Jesus was on the earth, He always showed the glory of God. जब यीशु मसीह इस संसार में था, वो हर समय परमेश्वर के महिमा को प्रकट करता था। Yeah, and He was the exact representation. और वो बिल्कुल परमेश्वर के स्वभाव की एक हूबहू छाप था। Yeah, so that is my calling, like Jesus, to be the exact representative. I'm very short of it, but this is my desire that I may be a representative of Jesus' life in my life. और यही मेरी भी बुलाहट है कि मैं परमेश्वर के स्वभाव की एक छाप रहूं और मुझे भी वैसे ही जैसा यीशु परमेश्वर को प्रतिनिधित्व करता था, मुझे भी यीशु मसीह के जैसे जीना है। And as we sang today morning the song, that really one verse really blessed me. Have thy own way, Lord. I will just read the verse that blessed me. Have thy own way, Lord. Have thy own way. और सुबह हमने जो एक गीत गाया उससे भी मैं बहुत आशीषित हुई। उस गीत में लिखा है, प्रभु तू जो मुझसे मेरे जीवन में चाहता है उसी के द्वारा तू कर।
Hold, O my being, सॉरी, hold, O my being, मुझे तू पकड़े रहे absolute sway. और मेरे जीवन में तू जो चाहे तू वो कर सकता है। Fill with thy spirit, तेरे पवित्र आत्मा से भरपूर होकर, till all shall see जब तक सब लोग देख न सके, Christ only always living in me. और मेरे अंदर हर समय और सिर्फ यीशु मसीह जीता रहे। I pray that God will fill me with the spirit till everybody can see only Christ living in me. और मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर मुझे उसके पवित्र आत्मा से तब तक भरता रहे, उतनी भरपूरी दे ताकि हर व्यक्ति मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को देख सके। This is not true in my life, but I pray that God will do it, that truly that Christ will be seen in my life. ये मेरे जीवन में आज सच नहीं है, पर ये मेरी प्रार्थना है कि प्रभु मेरे जीवन में इसको सत्य बनाए कि हर समय लोग मेरे अंदर यीशु मसीह को देख पाए। I praise and thank God. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। Sister Grace Jasper? Yes, please. I thank God for the opportunity He has given me to testify Jesus in my life. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, ये समय परमेश्वर ने मौका मुझे दिया उसके बारे में कहने के लिए। From my childhood, I was brought up in a godly way because my parents were Christian believers. और क्योंकि मेरे माता पिता मसीही थे, इसलिए मैं बचपन से एक ईश्वरीय रीति से मेरी परवरिश हुई। I used to read Bible and pray. और मैं बाइबल पढ़ती और प्रार्थना करती थी। But from my heart, I came to know Jesus as a real person when I was in 3rd standard. और जब मैं तीसरी कक्षा में थी, मैंने प्रभु यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता के रूप में सच में जाना। Because that was the time I saw the first miracle in my life. क्योंकि वही एक समय था जब मैंने पहला चमत्कार मेरे जीवन के अंदर देखा। I was studying in Ryan School, Kharghar. मैं रायन स्कूल जो खारगर में उसमें पढ़ाई करती थी। My dad lost his job and he couldn't pay the school fees. और उस समय में जो है मेरे पिता की जो जॉब है वो चली गई और तब मैं फीस नहीं भर पा रही, हम लोग फीस नहीं भर पा रहे थे स्कूल की। And there was lot of financial crisis at home. और बहुत सारी घर के अंदर जो आर्थिक कठिनाइयों का सामना हम कर रहे थे। Because my fees was not paid, my principal told me that I can't write my second term exam and I cannot continue my studies. और क्योंकि मेरी फीस नहीं भरी गई थी, इसलिए मेरे फ्रेंड्स जो थे उन्होंने कहा कि मैं दूसरे टर्म के एग्जाम नहीं दे पाऊंगी और आगे पढ़ाई को आगे नहीं निरंतर उसको आगे बढ़ा पाऊंगी। During the examination period, I decided I would fast and pray for this issue just to see whether we get a solution to this problem or not. और उस समय जो है परीक्षा के समय मैंने ये निर्णय लिया कि मैं प्रार्थना उपवास सहित करूंगी और मैं देखूंगी कि इसमें से कोई मार्ग निकलता है या नहीं। I had a friend called Sneha. She was my classmate and a neighbor for us too. और मेरी एक क्लासमेट थी जो मेरी मित्र थी, जो मेरे पड़ोस में भी रहती थी, जिसका नाम स्नेहा था। Whenever I go to her house after playing, her mom used to make us sit for prayer. और जब कभी खेलने के बाद स्नेहा के घर पर मैं जाती थी, उसकी मम्मी जो है हम सबको प्रार्थना में बिठाती। We would kneel down and pray and praise God. और घुटने पे आके प्रार्थना करना, प्रभु की स्तुति करना। Many times I saw my friend Sneha fasting and also God answering her prayers. और तब मैंने देखा कि परमेश्वर ने हमारी जो प्रार्थना है उसको उत्तर देते हुए। So this way I got the idea of fasting. और इस प्रकार जब मैंने देखा जो औरों को प्रार्थना करते हुए, मैंने उस उपवास का जो आइडिया जो था, विचार मेरे मन में आया। My mom that day told me clearly that we don't have money to pay the fees and she told me to go to a room, kneel and pray. और तब मेरी माँ ने शायद मुझसे कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है उस फीस को देने के लिए, लेकिन घुटने पे आकर मैं अपने कमरे में जाकर प्रार्थना करूँ इस संबंध में। So I went inside my room, locked and started fasting from morning till evening 4:30. और तब मैं अपने कमरे में गई, कमरा बंद करके सुबह से लेकर 4:30 बजे तक मैं उपवास के साथ प्रार्थना करती रही। After 4:30 I prayed and ended my fasting. और 4:30 बजे के बाद मैंने प्रार्थना को समाप्त किया और उसके बाद मैं उपवास को भी मैंने समाप्त किया। I came out of my room and I saw my daddy entering the house. He said to me, Grace, your fees is paid. और तब मैंने देखा कि मेरे पापा जो है कमरे के अंदर घर में प्रवेश कर रहे थे, ये कहते हुए कि ग्रेस, तुम्हारी स्कूल की फीस जो है वो पूरी के पूरी हमने भर दी है। After hearing it, I was shocked and surprised.
और इसको मैंने सुना इस बात को तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। My mom told me, see, God loves little children and He answered your prayers so quickly. और मेरी माँ ने कहा कि देखो परमेश्वर तुम छोटे बच्चों से कितना प्रेम करता है, तुरंत तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर वो देता है। I became very happy, and that was the first miracle in my life. और मैं बहुत ही खुश और आनंदित हो गया। वो ये पहला चमत्कार मेरे जीवन के अंदर मैंने उस समय देखा। Also, it was the first time I prayed to God with my whole heart. और वो एक ऐसा समय था जो पूरे हृदय के साथ मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की थी। Like this, my life went on. और उससे फिर आगे मेरा जीवन आगे बढ़ा। I still used to pray formally, read the Bible, go to church, memorizing verses, but nothing from my heart I did. और उसके बाद में मैं संडे स्कूल में जाती या फिर वचन को मैं कंठस्थ करती थी, संडे स्कूल में जाती, लेकिन मेरे हृदय से मैं उन बातों को नहीं कर पाती थी। On the other side of my life, I went to school. My friends used to fight with me and be jealous of me because all my teachers would like me and I used to be active in the class. और क्योंकि मैं क्लासरूम के अंदर मेरे कक्षा के अंदर बहुत ही एक्टिव थी, आगे थी, इसलिए मेरे जो दूसरे मित्र जो थे मुझसे जलन रखते थे। I come home and always complain on them and tell my mom to go and complain on those children when the fights were big. और जब उनसे झगड़ा करते जलन रखते थे, मैं घर पर आकर मेरी मम्मी से उनके बारे में, उन लड़कों, उन दोस्तों के बारे में, उन विद्यार्थियों के बारे में मैं शिकायत करती थी अपनी माँ से कि वो जाकर उनकी शिकायत करे। I used to feel lonely because of this and I never had a friend to share my frustration. और इस कारण से मैं बहुत ही अकेला महसूस करती थी और मेरे पास कोई मित्र नहीं था कि मेरे अपनी बातों को भीतर की मैं उनके साथ बांट सकूं। Sometimes the fights grew up because of my short-tempered attitude. और कई बार मैं बहुत जल्दी क्रोधित हो जाती थी, इसके कारण वहां पर लड़ाई झगड़े हो जाते थे। After some time, my mom understood me and used to counsel me that Jesus is your best friend and that you can share all your complaints and frustration. और उसके बाद मेरी माँ ने मुझे बताना आरंभ किया कि वो यीशु मसीह है जो मेरा एक सच्चा मित्र है, जिसके साथ मैं अपनी सारी शिकायतों को, सारी बातों को अच्छे से बांट सकती हूँ। Because going and complaining on those children makes a big issue. क्योंकि उन विद्यार्थियों के बारे में या उनकी शिकायत करना, इससे बहुत ही चीजें बढ़ रही थी। So I used to trust Jesus for the things I cannot share to anyone. और वो बातों के लिए मैं परमेश्वर पर भरोसा रखती थी, यीशु मसीह पर, जो बातें मैं किसी के साथ बांट नहीं सकती थी। After some time, God started developing an understanding mind to know about everyone properly before I make friendships. और इससे पहले परमेश्वर मेरे अंदर एक समझ को उत्पन्न करने लगा कि इससे पहले कि मैं दोस्तों और मित्रों को बनाऊं, तो परमेश्वर मेरे अंदर एक समझ को एक डालने लगा। God taught me a lesson that I should not make friendship with the worldly people. और परमेश्वर ने मुझे एक पाठ सिखाया कि मुझे दुनिया के, संसार के जो लोग हैं उनके साथ मित्रता नहीं करनी है। God also started working in my nature, that is building my character. और परमेश्वर मेरे स्वभाव के अंदर भी कार्य करने लगा, और वो इस रीति था कि मेरे चरित्र का निर्माण करने के साथ। I and my sister used to fight a lot for unnecessary things. और बिन जरूरी जो आवश्यक चीजें थी उनके साथ में, और मेरी बहन जो है, छोटी बहन, बहुत ही हम लोग झगड़ा करते। And I used to get angry on her always. और हमेशा मैं उसके ऊपर क्रोधित हो जाती। But I started working on it when my parents counseled me. और जब मेरे माता पिता ने मुझसे बात की उसके बारे में, संबंध में मुझे सिखाया, तब उसमें मैंने एक बदलाव को देखा। They used to correct me with lot of love and affection. और बहुत ही प्रेम और बहुत ही भावनाओं के साथ वो मुझे सुधारते थे। If my parents wanted us to be punished, they would have done it then and there. और मेरे माता पिता चाहते थे कि उसी चीज को हम वहीं पर ठीक करें। But instead, they used to counsel us in our family prayer in the presence of God. और उसको वहीं ना वहीं पे कोई सजा या दंड देने के बजाय हम एक पारिवारिक सभा के अंदर जो हम लोग मिलते थे, उसके अंदर वो उसके लिए मुझे सिखाते थे। The very first lesson I learned is to stop complaining on others पहला and not सबसे judge anyone, whether it is a child or an adult. और सबसे पहला मैंने यही सीखा पाठ कि किसी के संबंध के अंदर मुझे शिकायत नहीं करनी है, और चाहे छोटे या बड़े हो, उनके संबंध में कभी भी मुझे न्याय नहीं करना है। Only God has the right to judge people. और केवल परमेश्वर के पास ही न्याय करने का वो अधिकार है। The second lesson I learned is to love my friends who don't like me.
और दूसरा पार्ट मैंने ये सीखा कि उन दोस्तों मित्रों से मेरे प्रेम करना जो मुझे पसंद नहीं करते। Third lesson is to spend my lonely time with God in my room. और तीसरा कि मेरा जो खाली समय जो है मेरे पास जो होता है मेरे कमरे के अंदर परमेश्वर के साथ उस समय को बिताना। Whenever I want anything, I used to ask Jesus, and to my surprise, God provides me through my Father. और कभी भी मुझे कोई भी चीज की जरूरत होती मैं परमेश्वर से मांगती और मुझे बड़ा आश्चर्य होता कि उन बातों को परमेश्वर मेरे पिता के द्वारा उनको पूरा करता। This is a way I used to see Jesus working in my life. और इसी रीति से मैंने देखा परमेश्वर यीशु मसीह को मेरे जीवन में काम करते हुए। And I believe that Jesus is my only Father and whom I can trust him with my whole heart. और मैं विश्वास करती हूँ कि यीशु मसीह मेरा स्वर्गीय पिता है और उस पर मैं पूरे हृदय से भरोसा रखती हूँ। And I don't want to leave him anymore. और मैं उससे दूर नहीं जाना चाहती, उसे नहीं छोड़ना चाहती। There were many sins in me where Jesus revealed that it was a great sin. और कई बार ऐसे घटनाएं थी जहां पर यीशु मसीह ने बताया कि ये बहुत ही बड़े ये पाप हो सकते हैं। And I literally cried and repented and confessed. और मैंने सही में उन पापों को मान लिया, मैंने कबूल किया और उन पापों को परमेश्वर के सामने माना। I thank God for restoring me back. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे वापस परमेश्वर के साथ एक या पुनः स्थापित करने के लिए। And I thank Jesus for the great sacrifice he had done on the cross for my sins. और मैं यीशु का धन्यवाद करती हूँ वो बड़ा बलिदान जो उसने मेरे लिए उस क्रूस कर ऊपर किया। He took all my shame, all my punishment, everything. उसने मेरी सारी जो शर्मिंदगी है, जो सारी मेरी सजा अपने ऊपर ले ली। And I'm happy now and I'm growing in the Lord. और मैं भी आनंदित हूँ, परमेश्वर में बढ़ रही हूँ। I request everyone to pray for me. और मैं आप सभी से विनती करूँ कि मुझे आप अपनी प्रार्थना में स्मरण करें।